Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 8, Semester 2, Chapter 7, Following Mahatma Part 1, First Part. Last video we talked about the economic subject in Chapter 6, Human Resources. That was the chapter from economic portion. That subject will be introduced in 10th standard, but right now in 8th standard for introduction, that kind of chapter involved in your syllabus. So once again, we are going to talk about history, especially the time of freedom struggle. And this chapter is divided into two parts, following Mahatma 1 and following Mahatma 2. So what we are going to study in this chapter, that we start with introduction, then after we talk about the arrival of Gandhiji, then after Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh Massacre, Khilafat movement, non-cooperation movement, Simon Commission, Bardoli Satyagraha, Nehru report, and resolution of complete freedom, and thereafter one exercise is given. So this all content you will be going to study in 9th standard also. This same topic you will study in 9th standard, and here as per your standard some of the details are only mentioned. But what is the good thing, that whatever the things are mentioned, I'll show you the pictures of that situation, the scenario, and that will be help you to remember this all the topic. On the point of view of examination, this is one of the important chapter because many detailed answer will be asked from this chapter. It is depend on the paper setter, and small question also can prepare from this chapter. Okay, so let's start with the introduction. Okay, so the freedom struggle is divided into two groups: pre-freedom struggle and post-independence struggle, right? So when the Gandhiji arrived from South Africa, whatever the scenario changed in our country, whatever the unity built, and whatever the events held in our country, that is mentioned in this chapter. So it is very obvious that Mahatma Gandhi, born as a Mohandas Karamchand Gandhi, a common man from Porbandar, but afterwards, when right now he is not available between us, but we given him status of father of nation. So how could a person make himself as a Mahatma? So it is not only done by Mahatma Gandhi, you, me, and we all. If we work like that, then we achieve to that, we reach to that level. Okay. And why we are studying this history? Because of the motivation. Because we learn something from our mistake. And we can understand what is the importance of courage and self-confidence and willpower in our life. Because we are the special creatures which made by God, who have intelligence, who have skill of speaking, who have skill of express his self, emotion, everything, rather than any other animal. Okay. So this is the thing which we should learn from this chapter. So before Mahatma Gandhi arrived in 1905, Bengal was divided due to the divide and rule policy of Lord Curzon. And in 1911, the division was cancelled, but ultimately Muslim unity and Hindu unity was divided into two groups. Okay. Now, in this kind of circumstances, how did we achieve our freedom, and what was the path of Mahatma Gandhi? That is the turning point of this freedom struggle. So Gandhiji lived in South Africa for 20 years, and there he started a process of satyagraha, a different kind of style of protest. In that, two things were very important: non-violence, that is the first condition, and another is peace, right? So
बट ऑब्वियस हमने काफ़ी बार सुना भी है कि गांधी जी बोलते थे कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो उसको दूसरा गाल हमें सामने रख देना चाहिए, पर आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो सुनने की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो चुकी है। हमारे कान को एक ही बात सुनने की आदत है कि कोई हमारी तारीफ़ करे। अगर किसी ने बाई मिस्टेक भी गलती से हमारे अगेंस्ट में बोल दिया तो हम फटाक से डिसीज़न ले लेते हैं कि ये मेरा दोस्त या मेरा रिलेटिव नहीं है, या तो मेरा वेल विशर नहीं है। तो गांधी जी ने एक बात के ऊपर फोकस किया है कि ऑलवेज कीप पेशेंस विथ यू। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 100 बार सोचा करो। क्यों? क्योंकि आपके डिसीज़न की इम्पैक्ट कैसी होने वाली है, कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है और किस पे होने वाली है, वो आप जानते नहीं हो। तो सी व्हाट द थिंग इज मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। द पर्सन whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पे बच्चों एक बात समझो कि मोहनदास करमचंद गांधी भी एक लड़का था, वो भी ए स्टैंडर्ड में ही पढ़ता था, वो भी कॉमन मैन ही था। फिर इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई कि वो महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, पूरी दुनिया में फेमस हुए। वो कौन सा उनके पास सुप्रीम पावर था जो हमारे पास नहीं है? सो दैट इज द डिटर्मिनेशन, द डेडिकेशन टूवर्ड्स द वर्क। हम लोग पीछे हो जाते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि हमारे पास काम नहीं करने के बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं। और जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको देखो, उनके पास काम नहीं करने का एक भी एक्सक्यूज़ नहीं है। वो किसी भी तरह से कोई भी तरीके से अपना काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी दो ग्रुप बनते हैं कि ज़्यादातर हम लोग हमारे लिए सोचते हैं, पर जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनको हिस्ट्री ऑलवेज याद रखती है। और उनमें से एक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने लोगों के बारे में सोच के अपने एथिक्स को, अपने वैल्यूज़ को, अपनी स्किल को ऑलवेज उसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया। महात्मा गांधी भी हमारे जैसे ही इंसान थे, उनको भी हर्ट होता था, वो भी स्ट्रेस में आ जाते थे, वो भी डिमोटिवेट होते थे। पर उनका प्लस पॉइंट क्या था कि उनको मोटिवेशन के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ही फाइंड ऑल द मोटिवेशन फ्रॉम हिज ओन सेल्फ। और सेकंड थिंग था कि उनका रीडिंग, जो हम काफ़ी बार आप लोग को बोलते हैं, सब टीचर्स बोलते हैं कि रीडिंग से जो मोटिवेशन मिलता है वो और कहीं से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में जो हुआ उससे महात्मा गांधी की एक स्ट्रेंथ दुनिया को पता चली कि ये जो आदमी है मिस्टर गांधी, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। बाकी गांधी जी का ये फ़ोटो आप देखो, कहीं से भी वो सेलिब्रिटी टाइप लग रहे हैं आपको, कहीं से भी वो कोई हीरो जैसे लग रहे हैं, कहीं से भी उनकी बॉडी ड्रेसिंग दिख रहा है नहीं। सिंपल एक धोती में उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की, पर फिर भी वो फादर ऑफ नेशन बने। अब यहाँ पे हम डिसाइड करें कि मुझे फादर ऑफ नेशन बनना है, चलो प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो तो चलो एक बार ड्रीम फुलफिल हो भी सकता है, तो फादर ऑफ नेशन बनने का ड्रीम, तो उसके लिए कौन से लेवल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू थिंक। ओके, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ अ बैरिस्टर। तो यहाँ से हमें पता चलता है ही वॉज स्कॉलर, क्योंकि वो टाइम पे लॉ पढ़ना, बैरिस्टर बनना, इट वॉज नॉट ईजी टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट था। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका जाके लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। सो दिस शोज दैट गांधी जी वॉज टैलेंटेड स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम हमारे टैलेंट की बात करें तो हमें फिर एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारा लेवल कौन सा है, पर हम तो इसके बारे में कभी अवेयर होते ही नहीं है। अब आगे क्या होता है, द वाइट्स हैड एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी ओवर द ब्लैक नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो टाइम पे साउथ अफ्रीका भी यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनी बन चुका था, जैसे इंडिया था। कंपेयर टू द वाइट्स द इंडियंस एन्जॉयड वेरी फ्यू राइट्स। तो वाइट स्क्रीन जो होते हैं उनको ऐसा ही लगता था कि वो स्पेशल है, इसलिए भगवान ने उनको वाइट बनाया, और जो ब्लैक है वो स्पेशल नहीं है, उनको ऑर्डिनरी सब मिलना चाहिए। पर एज ए ह्यूमन बीइंग, God is not given any specific certificate to any human while he is taking born on the earth.
कि भाई हाँ ये स्पेशल है, इसके ऊपर मेरा स्पेशल आशीर्वाद है। ऐसा भगवान ने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाया। बट दिस ऑल द काइंड ऑफ सोशल रूल्स आर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। इस कोई भगवान ने कहीं पे कोई रूल नहीं बनाया है। भगवान ने एक सिंपल रूल बनाया है कि भाई लाइफ दी है, काम करते जाओ, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करो। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा ही करते रहो। बस भगवान ने यही अपने जितने भी धर्म ग्रंथ है या जितनी भी हॉली बुक्स है उसमें कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज में हो जाके देखो, ये एक ही बात कॉमन मिलेगी कि दूसरों को हर्ट करोगे तो वो गलत है और दूसरों के लिए करोगे तो वो अच्छा है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था जैसे इंडिया में था, और उसके विटनेस खुद गांधी जी बने। कैसे? गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड इनजस्ट। ही डिस्कवर द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्ट विच ही कॉल्ड द सत्याग्रह। तो यहाँ पे गांधी जी ने दो बातों के ऊपर इम्फासिस किया है, एक ट्रूथ, एक दूसरा नॉन वायलेंस। यानी हमेशा सच बोलो। अब सच बोलना एक तो बहुत डिफ़िकल्ट है, दूसरा कहाँ पे किसके सामने और कब बोल रहा है वो सच की वैल्यू के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है आज की डेट में। समझ में आया? जैसे कोई अंधा आदमी है उसको डायरेक्ट अंधा कह देना ये सच है, पर दिस इज़ पेनफुल ट्रूथ, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें। अब 2021 में कौन सा स्टूडेंट सक्सेसफुल होगा वो डिसाइड करेगा उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसकी स्किल के ऊपर, कि वो अपना जो पॉइंट है किस तरह सामने वाले को रखता है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो ये सीखने वाली बात है कि हमेशा सच बोलो, पर सच कब बोलना है वो टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी नहीं है। हाँ, वो लेवल पे चले जाएंगे फिर आप सच बोलो, कभी भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अभी ये लेवल पे सच ऑन द स्पॉट बोलना, देन यू आर इनवाइट रिस्क टू यू, वो आप रिस्क को इनवाइट कर रहे हो, तो ये हमें ध्यान रखना है। पर सच बोलने से फ़ायदा क्या होता है पता है आपको? कि कभी फिर झूठ नहीं बोलना पड़ता, उससे हमें डर नहीं लगता। जैसे हमने कोई गलत काम कर दिया, हमने एक्सेप्ट कर दिया तो हमें डर नहीं लगेगा। पर अगर हमने कुछ गलत किया और हम उसको छुपा रहे हैं तो हमें एक के बाद एक बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। और झूठ बोला है तो वह आज नहीं न कल सामने तो आने वाला है, उससे कोई बच नहीं सकता है। तो फिर जब उससे बचने ही वाले नहीं है तो फिर सच बोल के एक्सेप्ट क्यों ना करें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी। एक बार पनिशमेंट ले लो, दूसरी बार वो मिस्टेक रिपीट नहीं करो। मिस्टेक करना, गलत करना ये बुरी बात नहीं है, पर उसको रिपीट करना ये बुरी बात है। तो हो सकता है आपकी एज में आपको पता नहीं हो क्या सही है क्या गलत है, पर जब आपको पता चले कि मैंने जो किया वो गलत है तो उसको एक्सेप्ट करो और फिर वहाँ से एक डिसीज़न लो कि आज के बाद कभी भी कोई भी टाइप की इस तरह की गलती मुझसे होगी नहीं। और सेकंड जो बोला है नॉन वायलेंस, यानी किसी को मार के हम अपना बदला नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप स्कूल में पढ़ते हो साथ में, हो सकता है आपका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, फिर फिजिकली हैरेसमेंट चालू हो जाए, सो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ने हमें मारा है तो हम उसको मार के ही हमारा बदला ले सकें। मैं काफ़ी बार ये रिपीट करता हूँ कि आप क्या कर सकते हो वो इम्पोर्टेंस नहीं है, पर आप क्या करने का डिसीज़न लेते हो दैट कैन डिसाइड योर फ्यूचर। तब आपको पता चलेगा कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। तो यहाँ महात्मा गांधी का डेडिकेशन देखिए कि उन्होंने जो रास्ता पकड़ा ट्रूथ और नॉन वायलेंस का, उसमें उनको पता था कि आगे जाके उनको कितना प्रॉब्लम होने वाला है, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज किया और कल उसका रिजल्ट आ गया। गांधी जी ने इंडिया में भी 20 साल ये नॉन वायलेंस सत्याग्रह चलाया, तब जाके एक उसकी इम्पैक्ट बाहर आई और तब जाके ये स्ट्रॉन्ग यूनिटी बनी जो इंडिया की फ्रीडम के लिए काम में आई। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। अब साउथ अफ्रीका में एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो ये गांधी जी का देखिए, ये गांधी जी का एक स्लोगन है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड।
आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो वो पहले अपने अंदर करो। ये गांधी जी का फ़ोटो है ओरिजिनली, जब वो लॉ पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका में गए थे। ये गांधी जी है, ये उनके कलीग्स है सब, ठीक है। अब गांधी जी की दूसरी भी मैं आपको फ़ोटो बता रहा हूँ। ये जो गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया था साउथ अफ्रीका में, वो टाइम की पिक्चर है। अब यहाँ पे देखो, गांधी जी वेंट टू सी द डरबन कोर्ट, द जज ऑर्डर्ड हिम टू रिमूव द पागड़ी turban on head. Gandhiji preferred to leave the court than to remove the turban from his head. That's how he upheld his self-respect. He was appreciated and applauded by the Indians therefore this. तो गांधी जी जब डरबन कोर्ट में गए, जज ने उनकी जो पगड़ी पहनी थी वो निकालने के लिए बोला, गांधी जी ने मना कर दिया, वो कोर्ट से बाहर चले गए। तो ये बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कौन कर सकता है पता है? जो कंप्लीट हो अपने वर्क में वो कर सकता है। यानी अगर आप होमवर्क इनकम्प्लीट करके क्लास में जाओगे और सर डांटेंगे तो वो आपको सुनना ही पड़ेगा। अब वहाँ पे आप दादागिरी करके क्लास के बाहर नहीं जा सकते, और गए तो भी आपको ही पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सबसे पहली मिस्टेक किसकी है? आपकी है। तो जहाँ पे यू कंप्लीट योर वर्क देन यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। जहाँ पे हमने 100% दिया है वहाँ पे हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ध्यान से उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो एज अ ह्यूमन हमारा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। The struggle for freedom initiated in South Africa under the leadership of Gandhiji. Indians suffered a lot during the struggle, but they never responded with violence. At the end, the struggle became successful and popular. तो ये स्ट्रगल कहाँ से चालू हुई? तो ये एक सीन है, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पे महात्मा गांधी ने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की टिकट ली थी, फिर भी उनको वहाँ से निकाल दिया गया। उनका सामान ऐसा स्टेशन पे फेंक दिया गया ड्यू टू हिज स्किन कलर, उनके स्किन कलर की वजह से। ये वो स्टेशन जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। अब गांधी जी को यहाँ पे बहुत हर्ट हुआ कि मेरे पास सब कुछ है, टिकट है, आई एम allowed to sit in the compartment and due to my skin color only they thrown me out the compartment. फिर गांधी जी ने यहाँ पूरी रात बैठ के सोचा और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि ये मेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये हज़ारों लोगों का प्रॉब्लम है। तो कभी भी आपको कोई मुश्किल आती है तो ये मत सोचो कि ये आपका इंडिविजुअली प्रॉब्लम है, उसको दूसरे लोगों के साथ जोड़ के देखो और फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन लाने की कोशिश करो जो आपका प्रॉब्लम आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन तो दे, पर साथ में और हज़ारों लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले। और ये है द वे टू बिकम महात्मा, दिस इज़ द वे। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी की पर्सनल डिटेल है वो देखते हैं। फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, बर्थ ऑन 2 अक्टूबर 1869, बर्थ प्लेस पोरबंदर। जो गांधी जी का घर है वो कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये है गांधी जी का घर जहाँ पे उनका बॉर्न हुआ था, कीर्ति मंदिर पोरबंदर में। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ये भी देखो उसका ही पिक्चर है। यहाँ पे लिखा है पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल, इस तरह का उनका घर था। फिर उनकी मदर का नाम था पुतलीबाई और फादर का नाम तो आपको पता ही है, मोहनदास करमचंद। जो करमचंद जी थे वो उनके पिता थे। ये है गांधी जी की बचपन की फ़ोटो उनकी मम्मी के साथ में। ये है गांधी जी खुद और ये पुतलीबाई, और ये उनके फादर इस तरह से दिखते थे, ठीक है। उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा। ये है उनका फ़ोटो, देखिए कस्तूरबा ऐसे दिखते थे, और फिर बड़ी एज में इस तरह से दिखते थे। 11 अप्रैल 1869 टू 22 फरवरी 1944 उनका बॉर्न और डेथ, ठीक है। अब उनके स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र, तो उनका भी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे
ये श्रीमद राजचंद्र, ये उनके स्पिरिचुअल मेंटर थे यानी गुरु थे। फिर पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका फोटो आपने आगे वाले 4th चैप्टर में देखा ही है। देन आफ्टर जो उन्होंने बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 और उनकी जो समाधि है वो राजघाट दिल्ली में है। तो ये है राजघाट दिल्ली जहाँ पे उनकी समाधि है, ये उनकी समाधि है। देखो यहाँ पे हे राम भी लिखा है कि लास्ट में जब उनकी लास्ट ब्रीथ निकली तब उनके मुंह से कौन सा वर्ड निकला था, हे राम। अब यहाँ पे ये देखिए जब उन्होंने वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, फाउंडर ऑफ द नाताल इंडियन कांग्रेस डरबन साउथ अफ्रीका 1895, to protest against the racial discrimination, Gandhiji and other Indians established Natal Indian Congress in 1895. Can you recognize Gandhiji in the picture? तो गांधी जी ये टेक्स्ट बुक में आपके पिक्चर है, तो ये है गांधी जी और ये सब वो टाइम पे इनके पार्टी के मेंबर्स हैं। ये भी सेम पिक्चर है, देखिए 22 अगस्त 1894 को ये पार्टी बनी थी, तब की ये पिक्चर है और ये उसका पेज है। जो भी मेंबर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये सब बातें इस तरह से लिखी गई थी वो टाइम पे। अब देखते हैं आगे। आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एट द एज ऑफ 46 ईयर्स की एज में महात्मा गांधी वापस आए इंडिया। Gandhiji had acquired international fame and respect due to his success in protesting against the racial discrimination in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने सत्याग्रह किया उसकी वजह से पूरी दुनिया में वो फेमस हो गए। He was given a grand welcome at the Apollo Port, Wellington Pad. तो वो अपोलो पोर्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो अपोलो पोर्ट जहाँ पे गांधी जी आए, जहाँ पे आज की डेट में गेटवे ऑफ इंडिया है। उसका लेटेस्ट पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ। पहले वो कुछ इस तरह से दिखता था, इस तरह से, अब इस तरह से दिखता है। ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे गांधी जी आए थे सबसे पहले। गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज गांधी जी टू टूर द होल ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट ईयर टू नो द प्लाइट ऑफ इंडियंस। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बोला कि आप पूरी इंडिया घूमो, पहले देखो किसके कौन से प्रॉब्लम है। और वो ड्यूरेशन में भी इफ़ यू आर रीडिंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी देन यू फाइंड सच मोटिवेशनल इंसिडेंट्स हैपन ड्यूरिंग दिस 1 ईयर इन हिज लाइफ। क्यों उन्होंने धोती पहनना एक्सेप्ट किया, क्यों उन्होंने अपनी इतनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ा, ये सब जो भी इंसिडेंट हुआ वो ये 1 ईयर के टूर में हुआ था। And understand what they needed. After touring the country for a year, Gandhiji established Satyagraha Ashram in Kochrab, Ahmedabad, गुजरात on 25 May। ये कोचरब का आश्रम है जो उन्होंने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था यहाँ पे अहमदाबाद में। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा आश्रम एस्टेब्लिश किया, आफ्टर 2 years ही शिफ्टेड टू द साबरमती आश्रम अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती। फिर उसके 2 साल के बाद में गांधी जी साबरमती आश्रम पे शिफ्ट हुए। यह है साबरमती आश्रम की पिक्चर, आज के डेट में भी ऐसा ही दिखता है। और यहाँ से उनकी सत्याग्रह पॉलिसी इंडिया में अप्लाई हुई। ये है पिक्चर वो जब महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी 1915 को ये पिक्चर ली गई थी। यह है गोपाल कृष्ण गोखले। और जब इंडिया आए तो देखिए ये वो टाइम की पिक्चर है। इन 1950 गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू लिव इन इंडिया। ही स्पोक एट द कन्वेंशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट वॉज प्राइमरीली इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन इश्यूज पॉलिटिक्स एंड द इंडियन पीपल बाय गोपाल कृष्ण गोखले, अ रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी एट द टाइम। तो दिस इज द थिंग कि जब आप बड़े लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हो, देन यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट।
If you are having no willpower, then you are not able to do any kind of work. महात्मा गांधी भी एकदम कॉमन मैन ही थे, फिर वो महात्मा बने. उसके पीछे जो जो फैक्टर था वो उनका विल पावर था, उनका कॉन्फिडेंस था. अब ऐसा नहीं है कि गांधी जी से मिस्टेक नहीं हुई है, बहुत सारी मिस्टेक हुई है. एक बार जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने पापा के पॉकेट में से 2 रुपये चोरी कर लिए थे. फिर रात को उनको बहुत गिल्टी हुई कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, पर आप पापा को बोले कैसे वो अपने पापा को. तो उन्होंने एक लेटर लिखा और पापा के टेबल पे रख दिया. दूसरे दिन सुबह में जब करमचंद जी ने वो लेटर पढ़ा तो उनके आँख में से आंसू आ गए. गांधी जी पीछे ही खड़े थे क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे. तो उन्होंने रास्ता निकाला कि मुझे मेरी मिस्टेक एक्सेप्ट तो करनी है. और तब करमचंद जी ने उनको बोला कि आइंदा ऐसा मत करना. तब से गांधी जी ने अपनी लाइफ में कभी कोई चोरी नहीं की है. तो ऐसा नहीं है कि हम गलत नहीं हो सकते या हम गलत रास्ते पर नहीं चल सकते हैं. वी आर ह्यूमन, वी कैन डू मिस्टेक्स, बट वॉट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, दैट इज द थिंग विच डिसाइड द वे ऑफ द फ्यूचर. तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. बहुत सारी बातें हमें यहाँ से पता चलने वाली है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में. तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं. वी डिस्कस लॉट इन नेक्स्ट पार्ट. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स एंड वेयर अ मास्क एंड take care of yourself and your family. And if you are having any doubt, you can ask me your question anytime. God bless you. Thank you very much.